Student, today we are going to learn about the endocrine system and adolescence. Everyone, look at here. Now, here, what is endocrine system? There are two glands, that is the endocrine and exocrine. Okay, so first we will see the difference. In the endocrine, they are the ductless gland. That means here, suppose this is the organ. Okay, suppose this is your organ, and then how they will do? This gland, this is the gland. I am just writing here G. Okay, so they will secrete their secretion through this duct, and this is the target organ. Understood? That means they will take the help of this duct. Is it the endocrine? No. Endocrine is the ductless gland or duct gland? Ductless gland. So this secretion where you will see? Right, this is an exocrine. That means here this is a gland. This gland will secrete the secretion with the help of duct, and this is the target organ. So that means here this is the exocrine, not the endocrine. Understood? Understood everyone? Okay, so here, now this is exocrine. Exocrine में क्या है? They will secrete their secretion through the duct. Okay. In endocrine, they will not do this. What they will do? What they will do? Right. In an endocrine. See, इनके name में ही उनका meaning है. Endo means inside. Right. So now we have to consider this is the target organ. Okay. And so this gland will secrete the secretion here on the target organ. Right. Understood? They will not use any duct. Yeah, they will spread. They will spread inside. That is the endocrine gland. That means this is the ductless gland. This is the duct gland. Understood? Okay. So this is the main difference here. They will do this secretion through the blood vessel. Okay. Now I will tell you how exactly it is. Now, when the people are coming into the age, like in adolescence, so we are having so many hormones that are secreting in our body. Right? Growth hormone. क्या ग्रोथ हार्मोन सिर्फ आपके हैंड में ग्रोथ दिखाता है या सिर्फ आपके लेग या ओवरऑल बॉडी में ग्रोथ दिखाता है? राइट. सो दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. समझ में आ रहा है? राइट. इन अ गर्ल्स लाइक दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दैट इज व्हिच हार्मोन? दैट इज एफएसएच. दैट इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. हाँ, तो ये जो टारगेट ऑर्गन होता है ओरिस, उसी में सेक्रेट होता है. राइट. गर्ल्स में फॉलिकल कहाँ फॉर्म होती है? ओरिस में. ओरिस में क्या होती है? फॉलिकल्स में बहुत सारे से छोटे छोटे एग्स मिलके ये ओवम होते हैं जो एक बड़ा सा ओवा फॉर्म करते हैं. राइट. दिस ओवा इज बेसिकली द बिगर वन लाइक अ एग्स. So this follicle stimulating hormone is targeting on the ovaries. Understood? Like when any lady is pregnant, so when she deliver the child, at that time the prolactin hormone is getting secreted. Which hormone? Prolactin. So yeah, for the milk production. क्या उसके थ्रू आउट लाइफ वो मिल्क प्रोड्यूस करती है? नो. उसके मैमरी ग्लैंड्स तो प्रेजेंट रहते हैं, बट क्या वो थ्रू आउट लाइफ वो ये प्रोड्यूस करती है मिल्क? नहीं. राइट. या like when the baby start to take the milk from the mother, like when she stop breastfeeding, so at that time prolactin का secretion जो है वो बंद हो जाता है. Not immediately, but after some time it gets stopped. Okay? Understood? हाँ. So that means they are only working on the target organ. Right? So here, this is the main difference between the endocrine and exocrine gland. So, understood? Okay. So now here, in the endocrine gland, there are many, what you can say? There are many glands. They are basically endocrines. Okay. कौन से क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल के लिए बता सकते हो? हाँ, हाँ. राइट. अभी देखो, इसमें जो है, इसको मास्टर्स ग्लैंड किसको बोलते हैं? राइट. क्यों? They control brain. No. Right. This is the master gland. They control all the glands. ठीक है. So आपको ये सबसे ज्यादा याद रखना है. ठीक है. हाँ. ये क्या है? मास्टर ग्लैंड. अभी देखो, इसका जो शेप है मास्टर ग्लैंड, ये टी शेप होता है. राइट. टी शेप होता है. लाइक इट्स बेसिकली ये इस तरीके से ऐसा होता है, और ये जो है ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल. ओके. इंटीरियर पिट्यूटरी, मिडल पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ओके. राइट. अंडरस्टूड? हमारे इसके अंदर ब्रेन के अंदर और पिनियल ग्लैंड भी होती है. ठीक है.
ओके, सो ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जिसको बोलते हैं मास्टर्स ग्लैंड, बिकॉज दिस कंट्रोल दी ऑल द ग्लैंड्स. नाउ आफ्टर दैट वी विल स्टडी व्हिच ग्लैंड्स आर देयर. क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से ग्लैंड है? राइट, थायराइड ग्लैंड. राइट, थायराइड ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं? राइट, थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन का मेन वर्क क्या है? ह्यूमन ग्रोथ ओनली? नो, थायरॉक्सिन का मेन वर्क क्या है? मेटाबॉलिज्म. राइट, हाँ, इसमें बेसिकली ये जो ग्लैंड है ये ऐसे गो शेप ये होता है. ओके, एंड ये यहाँ से ऐसी है इन शॉर्ट. ठीक है, लाइक बो शेप, जैसे आप टाई का बो बांधते हो उस तरीके से होती है. ठीक है, हाँ. तो यहाँ पे ये क्या है? थायराइड ग्लैंड. उसके पीछे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड. राइट, आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी को गोइटर हुआ है. गोइटर, हाँ, मतलब वो क्या हुआ है? ये यहाँ का जो थायराइड है वो स्वेल हुआ है. वाई? या इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन. आयोडीन उसका कम है. फिर उसके बाद वो और कौन से डिसीज उसकी वजह से होते हैं? क्रिटिनिज्म. व्हाट इज क्रिटिनिज्म? व्हाट इज क्रिटिनिज्म? क्रिटिनिज्म क्या है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट. या एबनॉर्मल डेवलपमेंट. इट इज अ फिजिकल एज वेल एज मेंटल आल्सो, बट मोस्ट प्रोबेबली फिजिकल. आपने देखा होगा, देखो कोई बच्चा है उसका सिर एकदम ऐसे बड़ा है, हाँ, या कोई बच्चा है उसका हैंड या शोल्डर कुछ ज्यादा ही बड़ा है, नीचे की बॉडी बहुत छोटी है. राइट, दैट इज अ क्रिटिनिज्म. ओके, देन उसके बाद जो है मायोक्सिडियम. व्हाट इज दैट? इट इज बेसिकली इन द adults for the insufficient secretion of thyroxine. Understood? कभी भी उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. गोइटर इज बिकॉज ऑफ insufficient secretion of iodine and myxedema is in right. Understood? Okay. Then इसके बाद जो है, हाँ, adrenal gland. adrenal gland कहाँ पे होती है? On the kidney. Right. Right. जैसे ये किडनी है तो ये यहाँ पे होती है कैप शेप. ओके, ये क्या है? एड्रेनल ग्लैंड है. कौन सा ग्लैंड है ये? एड्रेनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? एड्रेनालाइन. लाइक उसको क्या बोलते हैं? राइट, ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये किसके ऊपर लोकेटेड है? राइट, अबाउट द किडनी. ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? एड्रेनालाइन. उसको क्या बोलते हैं? द हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लीट. मतलब जैसे जैसे जब when we are unable to control our emotions, like जैसे होता है ना कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा दुख होते हैं बिकॉज ऑफ द एड्रेनालिन सिक्रेशन. जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा, एड्रेनालिन रश. हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड? लाइक आपको टीचर्स स्कूल में बोलते हो कि एड्रेनालिन रश, दिस इज वी आर डूइंग बिकॉज ऑफ द एड्रेनालिन रश. Because now you people are in the adolescent phase, in your puberty phase. Puberty starts from the 12 to 18 years. In some cases it starts from the very early. Yeah, 10. And it's 18 or 19 years. Understood? Okay. So यहाँ पे जो अभी आप होते ना, किसी ने कुछ बोल दिया आपको बहुत immediately गुस्सा आएगा. Right? टीचर ने बोला नहीं आधा घंटा लेक्चर एक्स्ट्रा लेना है, you will get hyper. क्यों लेना एक्स्ट्रा लेक्चर? टीचर को कोई काम नहीं, हमें कोई काम है कि नहीं. ठीक है, हाँ. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एड्रेनालिन. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ. ओके, सो देन है पैनक्रियास. व्हाट इज पैनक्रियास? पैनक्रियास कहाँ पे होते? पहले मुझे आप ये बताओ. बिहाइंड द स्टमक. ओके, उसका वर्क क्या है? उसका हाँ, राइट. उसका वर्क क्या है? सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड राइट. सो पैनक्रियास में ओके, आपने नाम सुना होगा डायबिटीज मेलिपिडस एंड डायबिटीज इंसिपिडस. क्या होता है? पहले में शुगर लेवल कम होता है कि सेकंड वाले में कम होता है? ओके, उसमें क्या होता है? फर्स्ट वाले में जो डायबिटीज मेलिटस है उसमें क्या होता है? इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन. अभी मतलब उसका क्या है? उसको लो शुगर है. आप इतने सिंपल याद रखोगे. डायबिटीज मेलिटस मतलब क्या है? लो शुगर है. डायबिटीज मेलिटस ओके, उसमें क्या है? लो शुगर है. और डायबिटीज इंसिपिडस मतलब उसका अपोजिट, मोर शुगर है. अंडरस्टूड?
किसी का शुगर, हाँ डायबिटीज इंसिपिडस, अगर किसी का शुगर कम है इसका मतलब नहीं करे बहुत अच्छा कि उसका शुगर कम है, नो, इट इज ऑल्सो दी प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि जब आप असेंबली के टाइम पे खड़े होते हो तो बहुत सारे जो गर्ल्स एंड बॉयज है वो चक्कर आके गिर जाते हैं, दे गेट फेल डाउन, राइट, बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज दे हैव द लो शुगर प्रॉब्लम, The low sugar person can go in coma. या अंडरस्टूड, हाँ, एंड डायबिटीज इंसिपिडस जो है उसकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा होती है, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, हाँ, तो ये बेसिकली जो डायबिटीज इंसिपिडस है और डायबिटीज मेलिटस है, इन बोथ द केसेस इट इज जेनेटिक आल्सो, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, हाँ, तो ये किसके कहाँ पे सिक्रेट होता है, ये पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, या राइट, अगर इंसुलिन ज्यादा है मतलब ग्लूकागॉन कम है, समझ में आया, अंडरस्टूड, वाइस वर्सा, समझ में आ रहा है, ओके, देन यहाँ पे ये बेसिकली ग्लूकागॉन का वर्क क्या होता है, क्या एलिमेंट, ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट, अगर सपोज अगर आपके पास ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होगा, इन फ्रॉम वेरी योर लोअर स्टैंडर्ड यू स्टडीड दैट C6H12O6 gets break down to the CO2 H2O plus energy and plus O2, राइट, ये आपने इसमें भी पढ़ा है रेस्पिरेशन में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में, सेल्यूलर एंड ऑल दैट, राइट, हाँ, तो यहाँ पे एनर्जी अगर रिलीज नहीं करेगी आपकी बॉडी, सो हाउ विल वर्क, इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क, राइट, सो दैट्स व्हाई टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है, और वो कौन कर रहा है, ग्लूकागॉन कर रहा है, अंडरस्टूड, ओके, सो नाउ दिस इज फॉर दिस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या क्या होते हैं, कौन से हार्मोन वो ये करता है, पहले तो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, GH, फिर उसके बाद आता है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, TSH, फिर क्या आता है, हाँ फिर कौन सा आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, प्रोलैक्टिन इज आल्सो देयर, देन उसके बाद और क्या आता है, उसके बाद और क्या आता है, हाँ दैट इज एड्रेनालिन, ओके, फिर उसके बाद आपका आता है जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, एस्ट्रोजन फीमेल में, हाँ ये फीमेल में होता है, अंडरस्टूड, ओके, देन नाउ अभी मेन टॉपिक जो आता है एडलोसन, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडलोसन एंड पिट्यूटरी, कैन एनीवन टेल मी, पिट्यूटरी, सॉरी प्यूबरिटी, नॉट पिट्यूटरी, सॉरी, हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडलोसन एंड प्यूबरिटी, कैन एनीवन टेल मी, ओके, और मैं आपको बताती हूँ, द मेन डिफरेंस बिटवीन द एडोलेसेंस एंड प्यूबरिटी इज, एडोलेसेंस इज द ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है, अभी आप मुझे बताओ एक 7 साल का बच्चा अगर चॉकलेट के लिए रोएगा तो क्या एक 19 साल का लड़का भी चॉकलेट के लिए रोएगा, नहीं रोएगा, बराबर, हाँ, एक 7 इयर्स का या 7 इयर्स की या 6-7 इयर्स की अगर एक लड़की है, अगर उसको किसी ने जोर से डांटा तो कोने में जाके रोते बैठेगी, तो क्या 19 साल की लड़की भी कोने में जाके रोते बैठेगी, नो, हाँ, क्या एक जो 7 इयर्स की लड़की है या 5 इयर्स की लड़की है वो अपने बर्थडे पे गिफ्ट नहीं मिला या किसी पर्टिकुलर पर्सन से गिफ्ट नहीं मिला, मतलब चाचा से गिफ्ट नहीं मिला, मौसी से गिफ्ट नहीं मिला, तो वो जितनी रोएगी या जितना तमाशा क्रिएट करेगी, क्या एक 19 साल की लड़की भी करेगी, नहीं, राइट, राइट, सो ये बेसिकली, हाँ मुझे पता है आप लोग 19 साल के होने के बाद भी ये सब करते हो, दैट इज डिफरेंट, बट हाँ, बट ये बेसिकली ये नहीं होना चाहिए, राइट, यू पीपल आल्सो दैट, मेरा बर्थडे आ रहा है 1 महीने से पहले से आप ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज मेरा बर्थडे आ रहा है, राइट, हाँ, हाँ मेरा कल एग्जाम है बट मेरा बर्थडे है तो मैं पहले बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, ठीक है, दैट मीन्स यू आर नॉट एट मैच्योर, या, सो बेसिकली मैच्योरिटी इज नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, मैच्योरिटी इज नॉट ओनली अबाउट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैच्योरिटी इज अबाउट योर मेंटल, हाँ जैसे हाँ मेंटल, सोशल, लॉजिकल थिंकिंग, जैसे अगर आपने देखा होगा बच्चा जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं, कितना भी सीरियस डिस्कशन उनको कोई लेना देना नहीं, वो अपने अपने खेलते रहेंगे, राइट, दे विल लाफ, दे विल क्राई, बाकी कुछ भी चल रहा है,
राइट। बट क्या वही सेम चीज एक 19 साल का लड़का या लड़की करेंगे? नहीं करेंगे। Because they are getting mature. हाँ, बट नाउ डेज व्हाट पीपल आर डूइंग, घर में कोई भी डिस्कशन चल रहा है, यू प्ले योर मोबाइल, यू आर बिजी इन योर फ्री फायर एंड व्हाट गेम्स यू आर डूइंग, राइट। हाँ, तो बेसिकली दैट इज नॉट द मैच्योरिटी. So you have to think, you are only getting mature physically, not the mentally, not even the socially also. क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैंने ऑब्जर्व किया है, अभी कल परसों की बात है, ठीक है, कहीं पे पूजा थी तो उनको बोला कि 5 फल लेके आए, ठीक है, हाँ मतलब 5 fruits you have to bring for the puja. So what the child did, he is 21 years now. What he did, he took 1 banana from the shopkeeper, he took 1 chiku, he took 1 apple, he took 1 pomegranate, he took 1 guava, because his mother said कि 5 fruits only you have to bring. ओके, समझ में आया? मतलब इसमें ये समझ में आना चाहिए कि हम जब भी केला लेते हैं तो अगर हमारे घर में पूजा है तो पीपल विल कम, सो वी हैव टू गिव हिम प्रसाद, राइट। तो एटलीस्ट हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे ना, मैं ये नहीं बोलूं कि 100-200 उठा के लेके आए, राइट। He took it that line very seriously, bring 5 fruits for puja. So he only ना, so what he did, he नहीं 5 different fruits उसने बराबर लाए, लेकिन उसने क्या किया, हर एक के एक पीस लाया। तभी जो घर में, उसके घर में 20 लोग हैं तो उनको क्या खिलाएगा वो? हर किसी को एक एक तो प्रसाद के लिए मिलना चाहिए ना। That means they are only getting mature physically, not the socially, not the mentally. Understood? Socially मतलब क्या कि when you are going to some event and you are observing that कि क्या हो रहा है, राइट। अगर जैसे सपोज सम पर्सन इज महाराष्ट्रियन एंड दैट पर्सन वेंट टू दुर्गा पूजा, ठीक है, सो दैट इज कंप्लीटली बंगाली ट्रेडिशन, बट ही विल गो देयर, ही ऑब्जर्व देयर कि व्हाट डिफरेंट इज हैपनिंग. समझना? अंडरस्टूड? इफ यू सी द दुर्गा पूजा इन बंगाल एंड इफ यू सी नवरात्रि इन गुजरात, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो क्या डिफरेंस हो रहा है? दैट मीन्स मैं सोशली, इमोशनली और मेंटली मैं मैच्योर हूँ. Understood the concept? So that is the adolescence, and puberty is only about your physical structure. हाँ, अगर एक लड़की जैसे वो 5 साल की उम्र में दिखती थी, वैसी वो 15 साल की उम्र में, वैसी वो 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में नहीं दिख रही है, राइट? अंडरस्टूड? जैसे what was your voice at the age of 3, that is not your voice at the age of 17. Understood? हाँ, समझ में आ रहा है? So puberty is all about the physical structure. क्या ये physical? और ये क्या है? मेंटल. या इट इज ऑल्सो अबाउट अ फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल, और यू कैन से सोशल, इमोशनल, ऑल. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. Adolescence means to get that seriousness. Okay, now I am having the responsibility to look after. So now, and puberty is only about the physical structure. So that means if suppose one person who is having a psychological disease, सपोज कोई चाइल्ड है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल रिटार्डेशन या वी कैन से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. ओके, अगर कोई बच्चा है जिसमें कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ही विल नॉट डेवलप इनटू द एडोलेसेंस, ही विल ओनली डेवलप इनटू द प्यूबर्टी. समझ आ रहा है? हाँ, मतलब उसको सिर्फ उसके फिजिकल मैच्योर हो रहा है, नॉट मेंटली, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसमें है. मेंटल रिटार्डेड का ही दूसरा नाम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. आपने देखा होगा जब आप स्पेशल स्कूल में जाते हो, यू मे हैव सीन दैट कि एक 20 साल का लड़का है लेकिन उसको शूज की लेस बांधने नहीं आ रही. सुनिए, या 20 इयर्स की लड़की है, उसको ये नहीं पता कि हाउ टू टाई या हाउ टू कोम हर हेयर. ये होता है, ठीक है. दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी. अंडरस्टैंड? या नो, दैट इज डिसेबिलिटी. अभी कोई पर्सन जो है जो डिफरेंटली एबल है, सपोज कोई पर्सन है वो कंप्लीटली अपने सेंसेस में नहीं है, ठीक है, एनी मतलब लाइक बेसिकली दे आर हैविंग डिप्रेशन, दे आर हैविंग एंजाइटी, दे आर हैविंग सम अनदर इश्यूज, तो उसकी क्या हो रही है? प्यूबर्टी. उसका सिर्फ हेल्थ डेवलप हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, नॉट मेंटल, नॉट सोशल, नॉट इमोशनल. समझ में आ रहा है? हाँ, सो ये डिफरेंस है प्यूबर्टी और एडोलेसेंस में. अंडरस्टूड? इट इज ऑल अबाउट ओनली द फिजिकल. लाइक जैसे अगर कोई गर्ल है, सो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रेस्ट, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो दैट शी कैन बेयर अ चाइल्ड. अगर मेल है, सो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ अ मुस्टैच, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ अ बियर्ड. ओके, उसका एडम्स एपल्स बढ़ जाएगा, उसका वॉइस रोरिंग वॉइस हो जाएगा. अंडरस्टूड? या बट ये सारा फिजिकल में आया, ये एडोलेसेंस में नहीं आया.
ये मेंटली नहीं है. ओके, एंड योर प्यूबरिटी इज नॉट इन योर हैंड. अगर आपने बोला नहीं नहीं मुझे हमेशा छोटा ही रहना है, मुझे बड़ा होना ही है, so that is not in your hand. Even adolescence is also not in your hand. बट ये बेसिकली अभी आप देखो कि जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनके घर में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करें, सो दे विल गेट मैच्योर वेरी इजीली. मतलब वो 19 इयर्स तक नहीं उनका ये होगा, दे विल गेट मैच्योर 13-14 इयर्स में भी वो इतने मैच्योर हो जाएंगे, सो दे कैन हैंडल देयर यंगर सिबलिंग्स, दे कैन हैंडल देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. अंडरस्टूड? बट ये केस में अलग है. अंडरस्टूड? हाँ. So this is the difference between the adolescence and puberty. I hope you understood all this chapter. Okay. Thank you so much, student. Please like, share, and subscribe to our channel. Thank you.